Hello students, today we will start our second chapter, inverse trigonometric function. ITF, inverse trigonometric function. In short form, we call it ITF. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, तो एज इट इज रिटन हियर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इन क्लास 11 वी हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू cot x, y इक्वल टू sec x and y equal to cos x. We have studied in the detail about all the fixed function y equal to sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x. We all know the graph of all the functions and domain and range of all the functions. Now we have to study the inverse of the trigonometric function. Suppose it is y equal to sin x, then y is equal to sin inverse x. We have to study it out now. So y is equal to sin x and y is equal to sin inverse x. These both are inverse of each other. Means if we say that the inverse of sin x, then it will be y is equal to sin inverse x. Similarly, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, so on. Cot, sec, cosec. So we have to study about the inverse function. In function we have studied what is the inverse function and in which condition the inverse is possible. Means we know that the inverse of all the functions are not possible. There are some conditions for which a function, the inverse of any function will be possible or feasible. Okay? So let's see how the y equal to sin x, for y equal to sin x we will get the y equal to sin inverse x. How? We know that for any function, if inverse has to be established, then that function should be 1 1 and onto. उस फंक्शन को 1 1 और onto होना पड़ेगा अगर उसका इनवर्स हमको निकालना है तो. ठीक है, तो फॉर y equal to sin x, if we want to derive y equal to sin inverse x, if we want to find out the inverse of that this y equal to sin x, then first of all we have to check that whether y equal to sin x is 1 1 or onto or not. 1 1 onto होगा या नहीं होगा. जब तक फंक्शन आपका 1 1 onto नहीं होगा तब तक आप y equal to sin x को y equal to sin inverse x के फॉर्म में या हम कह सकते हैं कि sin x का इनवर्स पॉसिबल नहीं. तो बात करते हैं y equal to sin x की. We can see from the graph this is the graph of sin x, x, y. This will be pi by 2. This is pi. This is 2 pi by 2. This is 2 pi. Again it is 0. It is minus pi by 2, minus pi, and minus 2 pi by 2, minus 2. तो this y equal to sin x, इसका डोमेन है x इज द रियल नंबर. आपको पता है x की सारी वैल्यू के लिए आपको y मिल रहा है और y जो कि रेंज जो होगा वो होगा -1 से 1. ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं. यू कैन सी दैट हियर वी आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ y फॉर मेनी वैल्यू ऑफ x. सपोज यू कैन सी दैट at x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to pi, y is equal to 0, x is equal to 2 pi, y is equal to 0. So infinite values are there for x for which the y is 0. तो 1 1 कहता है कि x की
वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है x की दो से इनफाइनाइट वैल्यू ऐसे मिल रही है x की, जिसके लिए y की वैल्यू सेम है। तो और अगर आपको ग्राफिकली इसको देखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन ड्रा ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इफ दिस लाइन कट द कर्व एट मोर देन वन पॉइंट, then that function will not be 1, 1। अगर एक से अधिक जगह वो कर्व को कट कर रहा है, then that function will not be 1, 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लाइन 1, 2, 3, 4, 5 है। So infinite times this line will cut the function, so it will not be 1, 1। तो अगर 1, 1 नहीं है तो sin inverse x इसका पॉसिबल कैसे है? ठीक है, मेन चीज यही है कि अगर 1, 1 नहीं है तो अगर फंक्शन 1, 1 नहीं होगा, ऑनटू नहीं होगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने इसका ऐसा रेंज दिया जिस रेंज में ये 1, 1 और ऑनटू दोनों हो। यू कैन सी फ्रॉम हियर, इफ वी टेक द ग्राफ फ्रॉम -π/2 to π/2, इफ यू व्हाट यू डू, यू जस्ट एलिमिनेट ऑल द कर्व एक्सेप्ट -π/2 to π/2। -π/2 से π/2 को छोड़ के सारे कर्व को, गोल कर्व को आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो यू विल गेट दिस फंक्शन, दिस टाइप ऑफ ग्राफ हियर। दिस इज ऑल्सो y = sin x, यही आपका y = sin x ही है, बट जो रेंज है वो रियल नंबर नहीं है, ये क्या हो गई है -π/2 से π/2, सॉरी डोमेन जो है वो क्या हो गया है -π/2 से π/2। अब अगर इस रेंज की बात करें -π/2 से π/2, तो ये फंक्शन कहीं भी अपनी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, मीन्स x की एक वैल्यू, दो वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू नहीं मिल रही है। And it is onto also because we are getting all the value from 1 to -1, 1 से -1 के बीच में हम लोग सारी वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब इस पीरियड में -π/2 से π/2 के पीरियड में ये फंक्शन 1, 1 भी है और onto, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम y = sin x में x को रिस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 से π/2, then we can obtain the y = sin inverse x for this y = sin x, in which x is the element of -π/2 to π/2, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर यही एक इंटरवल क्यों लिया? इंटरवल तो बहुत सारे ले सकते थे, ठीक है। इसके बाद वाला इंटरवल हो सकता था π/2 से लेकर 3π/2 तक वाला, या 3π/2 से लेकर के यहाँ पे 5π/2 वाला ले सकते थे। उन सबके लिए 1, 1 और onto दोनों होगा, लेकिन एक्चुअल में यूनिवर्सल यूनिकनेस बनी रहे, पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज फॉलो हो, इसके कारण हम लोग एक ही रेंज लेते हैं। सपोज कि मैंने ले लिया -π/2 से π/2, आप किसी ने काम किया 3π/2 से लेकर 5π/2 तक, तो डिफरेंस आ जाएगा, चीजों में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। 1, 1 और onto सारे केस में। तो आपके काम में पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज फॉलो की जाए, उसके लिए हमने क्या किया, हमने क्या कहा कि भाई अगर हम y = sin inverse x की बात करेंगे तो उसमें जो x होगा वो -π/2 से π/2 के लिए करेंगे, क्योंकि इसी पीरियड के लिए एक तो अच्छी बात ये भी दिख रही है, सिमेट्री भी दिख रही है, जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव। खैर हर केस में सिमेट्री नहीं दिख सकती है, cos x में देखेंगे हम लोग सिमेट्री नहीं बन पाएगी, निगेटिव और पॉजिटिव पोर्शन सेम नहीं होगा, लेकिन अगर बन सकती है तो हम ये टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि -π/2 से π/2 में सिमेट्री फॉलो कर रही है, और 1, 1 भी है onto भी, तो वी विल डेफिनेटली टेक द x फ्रॉम -π/2 to π/2। तो अब हमको इस x के लिए या y = sin x के इस ग्राफ के लिए हमको sin inverse x डिफाइन करना है। अब हमको दूसरी चीज आते हैं, हमको पता है किसी भी ग्राफ का या किसी फंक्शन का जो इनवर्स होता है उसका डोमेन और रेंज क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। मतलब कि अगर y = sin x का x -π/2 से π/2 है, तो अब यहाँ पे y क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज होगा वो हो जाएगा -π/2 से π/2, ठीक है।
और रेंज इसका -1 से 1 है, तो इसका x डोमेन हो जाएगा -1 से 1। मीन्स क्या होता है, फंक्शन अगर एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स होता है तो हमको पता है उसका डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाता है। जो इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा वो फंक्शन का रेंज होगा, और जो फंक्शन का डोमेन होगा वो इनवर्स फंक्शन का रेंज। ठीक है, तो इंटरचेंज हो जाता है। तो फॉर y इक्वल टू sin 1x, if we will talk about the domain, that will be x element of -1 to 1, and if we will talk about the range, then that will be -π/2 to π/2, that is the interchange of the y equal to sin x। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं y equal to sin x जो ग्राफ है, इससे हमको y equal to sin 1x कैसे मिलेगा। ठीक है, करना क्या है, हमारे दिमाग में बेसिक चीजें आ चुकी हैं कि हमको x और y को इंटरचेंज कर देना है। x और y को इंटरचेंज कर देना है, जहां x होगा वहां पे y होना चाहिए, और जहां पे y होगा वहां पे x होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसके लिए 2 स्टेप है। सपोज कि ये ग्राफ आपका यही तक है, इसके लिए 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, रोटेट द होल ग्राफ by 90 degree anti-clockwise. Rotate the whole graph by 90 degree anti-clockwise. इस ग्राफ को 90 डिग्री एंटी-क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। अब आप देखेंगे जब आप 90 डिग्री एंटी-क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, the x will be at the position of y. So जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ध्यान दीजिए, हमने इसको रोटेट कर दिया तो ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। y कहां पहुंच गया, 90 डिग्री हमने रोटेट किया है। ये आपका x है, y है, -x है, -y है, -x यहां पहुंच जाएगा एंड -y यहां। ठीक है, और ये ग्राफ जब रोटेट कर रहा है 90 डिग्री तो हमको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। रोटेट कीजिए, आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, जहां पे ये जो वैल्यू है ये π/2 है, और ये वैल्यू क्या है, -π/2 में। बट ये जो वैल्यू है ये -1, और ये वैल्यू आपकी 1। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं x और -x तो अपने अकॉर्डिंगली है। जैसे y आपका अपवर्ड होता है, नेगेटिव y डाउनवर्ड होता है, उसी तरीके से अगर x अपवर्ड हो जाओ और नेगेटिव x डाउनवर्ड हो। बट अगर हॉरिजॉन्टल की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल में राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या है, राइट साइड निगेटिव है और लेफ्ट साइड y है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में what we will do, we can take the mirror image corresponding to the x-axis। जो अभी प्रेजेंट में x-axis दिख रहा है, इसके corresponding हम लोग मिरर इमेज लेंगे। तो जब मिरर इमेज लेंगे तो हमको -y के यहाँ पे y दिखेगा, और y के यहाँ पे -y दिखेगा, और कुछ ग्राफ हमारा इस तरीके का। अब जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ ग्राफ हमारा ये बन जाएगा, दिस विल बी π/2 और दिस विल बी -π/2। नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज -। ठीक है, तो ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया -x, ये हो गया -x। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स y। हमने क्या किया, y के यहाँ पे x ले आ दिया, x के यहाँ पे y ले आ दिया,
तो हमको ये ग्राफ मिला x इक्वल टू साइन और फाई. बट व्हाट वी डिड, we can't change the x and y axis. The axis will be same. Means on the horizontal we will take x axis and on vertical we will take y axis. तो ग्राफ तो हमको इन्वर्स का मिल गया है, बस उसको हमको अपने अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमको कन्वर्ट करना है. तो कुछ नहीं, ग्राफ का शेप नहीं चेंज होगा, बाकी आप स्मॉल में लिख सकते हैं. थोड़ा सा जगह करीब का लिख रहा हूँ. ये हो गया सेम चीज है, पाई बाई 2 minus pi by 2. This is 1 and this is minus 1. जो आपका यूनिवर्सल नोटेशन है उसको आप फॉलो कीजिए, y और ये माइनस वाई. अब ये आपका ग्राफ फाइनली बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स है, जहाँ पे x क्या है -1 से 1 और y क्या है -pi by 2 to pi by 2. x is the element of -1 to 1 और y is the element of -pi by 2 से. So here you can see that the x was -pi by 2 to pi by 2 in sin x, but here it is -1 to 1. That was the range, and the range is -pi by 2 to pi by 2, which was the domain. तो डोमेन एंड रेंज आपका इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है. और इन दिस मैनर वी विल ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स. ठीक है. तो वर्ड में किसी भी फंक्शन का अगर यू हैव टू ड्रा द इनवर्स फंक्शन, तो फर्स्ट चेक दैट फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू और नॉट. इफ दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, then you can draw only the inverse of that function. And for drawing and for obtaining the graph of inverse function from that function, these two steps will be same. First one, the rotate the whole graph by 90 degree anti-clockwise, and second one, take the mirror image corresponding to the x-axis. जो एक्स एक्सिस अभी आपको दिख रहा है उस एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग मिरर इमेज लेंगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव दिखेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव. तो आपको स्टैंडर्ड जो है राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ये आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो इन द सेम मैनर यू कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, सबका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं. बहुत ही इजी. पैटर्न सब में सेम है, बस हमको ये देखना होगा कि cos x किस रेंज के लिए आपका 1 1 और 2 है, tan x किस रेंज के लिए 1 1 और 2 है. मतलब हमको अपना रेंज में देखना पड़ेगा कि उसको 1 1 और 2 होना पड़ेगा. अगर नहीं होगा तो हम वो रेंज खोजेंगे जिस रेंज में वो 1 1 और 2 हो, और फॉर दैट रेंज वी विल ड्रा द इनवर्स ऑफ दैट. क्लियर. तो लेट्स सी वन मोर, y इक्वल टू cos x. ठीक है. देखते हैं y इक्वल टू cos का इनवर्स फंक्शन क्या होता है. y इक्वल टू cos x, x की वैल्यू होती है रियल नंबर. हम जानते हैं कि y इज -1 to 1. ग्राफ इज similar to the sin x, just 90 degree phase difference. Means okay. तो यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका 1 है, ये 0 है, ये -1 है, -1. Okay. This is pi by 2. This is pi. This is 3 pi by 2. Okay. This is minus pi by 2. This is minus pi. This is minus 3 pi by 2. ठीक है. तो अब देखिए
From this figure graph you can see that this graph is also not 1 1 and not 2. 1 minute. This graph is also not 1 1 because if you will draw